Hello guys, welcome to my YouTube channel Info by Sunil. In this video, we will discuss the causes of 1857 revolt in detail. I will also explain them in Hindi. So first one is our political cause. So in the late 1840s, Lord Dalhousie imposed or implement doctrine of lapse, which means a ruler must be belong to king's family with a male ruler was allowed there of their hair, and they were only belong from king's family, which caused a sudden outbreak among the Indians. Or we can say that there was a British policy of expansion. The political cause of the revolt were the British policy of expansion through the doctrine of lapse and direct annexation. A large number of Indian rulers and chiefs were dislodged, thus arousing fear, or you can say frightened, in the mind of other ruling families who apprehend a similar fate. Rani Lakshmi Bai adopted son was not permitted to sit on the throne of Jhansi. Satara, which was in Maharashtra, Nagpur, and Jhansi were annexed under the doctrine of lapse. Jaipur, Sambalpur, and Udaipur were also captured annexed. The annexation of Awadh by Lord Dalhousie on the pretext of maladministration left thousands of nobles, officials, retainers, and soldiers jobless. These measures converted Awadh, a loyal state, into a hotbed of discontent and intrigue. There was a doctrine of lapse. The notable British technique, called the doctrine of lapse, was first perpetrated by Lord Dalhousie in the late 1840s that we have earlier discussed. It involved British prohibiting a Hindu ruler without a natural heir from adopted a successor, and after the ruler died or abdicated, annexing his land. To those problems added the growing discontent of the Brahmins, many of whom had been dispossessed of their revenues or had lost lucrative positions. अगर हम हिंदी में बात करें तो पहला कारण जो है हमारा वो है पॉलिटिकल कॉज. हम कह सकते हैं कि 1840 1840 के बीच में लॉर्ड डलहौसी ने एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिस पॉलिसी के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो रूलर होगा या जो राजा होगा वो आगे उसकी ही डिसेंडेंट, उसके ही वंश में, उसके ही हेयर के अंदर फॉलो किया जाएगा, और वो रूलर जो होगा वो मेल ही होना चाहिए, सिर्फ मेल हेयर के अंदर. और जो रूलर, जो राजा वहाँ से बिलोंग करता है वो सिर्फ उसके अंतर्गत ही माना जाएगा. उसके अलावा कोई भी दूसरे लीनिएज का या दूसरे वंश का अगर कोई रूलर है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी मानेगी नहीं. और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उस केस में जो रूलर होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होगा. तो ये कारण जो था, इसकी वजह से भारतीय लोगों में एक तरीके का गुस्सा और क्रोध आना लाजमी था. और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंदर भी यही था कि जो रूलर होगा इट मस्ट बी बिलोंग फ्रॉम मेल हेयर ओनली. मैं एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने एडॉप्ट जो सन किया था उसको यहाँ ये तक अनुमति नहीं थी कि वो राजगद्दी पर बैठ सके ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी, जो कि बहुत ही ब्रेव फाइटर थी. सतारा, नागपुर, झांसी, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगाया गया. ये जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अंतर्गत हमको पता है लॉर्ड डलहौसी ने इसको सबसे पहले 1840s के आसपास इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया थी. ये एक तरीके की ब्रिटिश टेक्निक थी कि जो रूलर की पावर है वो उनके अंडर ही घूमे. वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियन रूल करे. ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण था. सो ये हमारा पूरा जो आता है पॉलिटिकल कॉज के अंतर्गत आता है. इसके आगे हम देखते हैं. नाउ I would like to explain the difference between doctrine of lapse and subsidiary alliance. So, subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. Doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. Under subsidiary alliance, the state had to keep the British resident in their headquarters. According to doctrine, if any ruler died without a natural heir, his kingdom would be annexed and it must be go towards East India Company. The state in
Subsidiary alliance would be provided with military support to protect the king from internal and external support. The king was not allowed to adopt any heir. However, the state was born on the expense of the army. The state was also supposed to be part of the territory or pay on the fixed amount to the British. In the subsidiary alliance, states like Hyderabad, Mysore, Jodhpur, and Jaipur came under British control. In Doctrine of Lapse, kingdoms like Satara, Sambalpur, Udaipur, Nagpur, Jhansi, and Bundelkhand in Jharkhand were annexed by adopting the Doctrine of Lapse. So, जैसे कि हम जानते हैं सब्सिडियरी अलायंस को लॉर्ड वेल्सली ने सबसे पहले यूज़ किया था और इंट्रोड्यूस भी किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौसी ने किया था। इस सिस्टम के अंतर्गत स्टेट जो होती है ब्रिटिश रेसिडेंट के अंदर ही आती है और जो कोई भी एक्ट, जो कोई भी हरकत होगी या जो कोई भी काम होगा वो उनके कंट्रोल में रहेगा ब्रिटिश रेसिडेंट के अंदर अंदर। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा जो राजा है जो आगे जाके बनेगा कोई मर जाता है और उसका कोई बेटा नहीं है यानी कोई मेल हेयर नहीं है, तो उसको आप हटा सकते हो, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगा, वो जो रूलर होगा। स्टेट जो है प्रोवाइड करता है मिलिट्री सपोर्ट, जिससे कि किंग जो है वो हर तरीके से बचा रहे फ्रॉम किसी बाहरी खतरे से भी और किसी अंदरी खतरे से। बाहरी खतरे मतलब कि कोई दूसरे किंगडम के रूलर आके अटैक करते हैं तो उससे, और अंदरी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इट। और स्टेट जो होता सब्सिडियरी अलायंस के अंदर वो सारी चीज़ें कलेक्ट करता था, वेदर इट वाज टैक्स, और अमाउंट जो होता था बहुत फिक्स रखते थे ब्रिटिश इस टाइम में। और हैदराबाद, मैसूर, जोधपुर, जयपुर जैसे स्टेट्स इसके अंदर अंदर आते थे और इसमें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसे स्टेट्स आते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ को लेकर। पहले इंग्लिश में बता देता हूँ फिर हिंदी में। सो नाउ वी विल डिस्कस इकोनॉमिक कॉजेज़। सो वन इज़ रेवेन्यू सेटलमेंट। In rural areas, peasants and zamindars were infuriated by the heavy taxes on land and the stringent method of revenue collection followed by the company. Many among these groups were unable to meet the heavy revenue demands and repay their loans to moneylenders, which eventually losing the land that they had held for generations. Or we can say that large number of sepoys belonged to the peasantry class and had family ties in villages, so the grievances of the peasants might also affect him, and which can cause the sudden outbreak among the citizens of India. Then we have discouraged Indian handicraft and promoted British goods, depriving Indian cotton in Europe. Zamindar land right in trouble. Reunion of Indian industry and increased dependency on agriculture. Indian handloom vaporization. We have also seen large number of sepoys belong to the peasantry class and had family ties in villages, so the grievances of the peasant also affect them. After the Industrial Revolution in England, there was an influx of British manufactured goods into India, which ruined industry, particularly the textile industry of India. Indian handicraft industries had to compete with cheap machine-made goods from Britain. So economic या आर्थिक वाले कॉजेज़ में हम कह सकते हैं, पहला तो रेवेन्यू सेटलमेंट का प्रॉब्लम था। गांव के एरियाज़ में जैसे कि हम जानते हैं जहाँ पे किसान होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनके बीच के रिलेशंस को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि लैंड के ऊपर हैवी टैक्सेस को लगाना, जिससे कि टैक्स बढ़ेगा तो उससे क्या है, जो पीसेंट्स हैं, किसान हैं, वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, वेदर वो ज़मींदार से बोलेंगे या ईस्ट इंडिया कंपनी से बोलेंगे। लेकिन ये मेथड लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। इसके कारण इन्होंने प्रोटेस्ट करा। बहुत से जो लोग थे ग्रुप के वो मिल नहीं पा रहे थे, और बहुत से किसान जो थे वो गरीब थे, तो वो इतने हाई टैक्सेस को पे नहीं कर सकते थे। तो यही कारण था कि उन्होंने रिवॉल्ट को करा, या वो लोन पे नहीं कर पा रहे थे मनी लेंडर्स को, ये भी एक कारण था। ज़्यादातर जो सिपोइस थे वो पीसेंट्री क्लास से बिलोंग करते थे और उनके रिश्ते जो थे फैमिली लाइफ वो विलेज से कनेक्टेड थे। तो जो पेन पीसेंट्स के लिए था वही सेम पेन ज़मींदार के लिए भी था। तो ज़मींदार और पीसेंट उस टाइम पर एक साथ खड़े थे। प्लस वी हैव ऑल्सो सीन दैट
लैंड राइट्स की प्रॉब्लम जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इंडियन हैंडलूम पेपराइजेशन, हैंडलूम इंडस्ट्री का अचानक से फॉल होना और उस टाइम पर पावरलूम इंडस्ट्री का ग्रोथ होना। कहने का मतलब ये है हैंडलूम में जो चीज़ें वो हाथ से बनती है, एग्जांपल अगर कोई भी इंडिया में तो हमें पता है कि चीज़ें ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा पे फोकस करा जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे हटेंगी वैसे वैसे पावरलूम चीज़ आई, मशीन आई। मशीन ने क्या किया, ह्यूमन लेबर के एफर्ट्स को बिल्कुल ही एक तरीके से कह सकते हो मिटा दिया। ये कह सकते हो आप कि उस वजह से मशीन का जो डोमिनेंस था वो बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ था, और उससे भी एक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था। देन वी हैव मिलिट्री कॉजेज। इंडियन सोल्जर्स वर पेड लो सैलरीज, they could not rise above the rank of Subedar and were racially insulted, as well as harsh treatment for Indians in the military campaigns and exploitation of Indians in large number caused an outbreak. तीसरा कारण हम बता सकते हैं कि एक तरीके से मिलिट्री कॉज था कि जो सोल्जर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे उन सोल्जर्स को ये राइट नहीं था कि वो सूबेदार से ऊपर वाली रैंक पर जा सके। प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में डिस्क्रिमिनेशन की जो परंपरा है और इनसे ये जो भेदभाव वाला है वो बहुत ज़्यादा रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा से ही इंडियंस की तरफ रेसिस्ट रही है इन केस ऑफ टर्म्स ऑफ रैंक्स, और इंडियंस को ये परमिशन नहीं थी कि वो सूबेदार से ऊपर की रैंक पर जाके काम कर सके। प्लस उनका बहुत एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करना लार्ज नंबर में, ये एक मेजर कॉज था कि उन्होंने रिवॉल्ट किया। देन वी हैव रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि हम जानते हैं जो सोशल रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटिशर्स ने किए थे वर अगेंस्ट द पीपल विल लाइक विडो रीमैरिज, एबॉलिशन ऑफ सती, स्कूल फॉर गर्ल्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एक्सेट्रा। तो we have also seen that the rapidly spreading Western civilization in India was alarming concern for all over the country. An act in 1850 changed the Hindu law of inheritance, enabling a Hindu who had converted into Christianity to inherit his ancestral properties. The people were considered that the government was planning to convert Indians to Christianity. The abolition of practice like sati and female infanticides and the legislation legalizing widow remarriage were believed as threats to the established social structure. Plus, we have seen introducing Western method of education was directly challenging the orthodoxy for Hindu as well as Muslim. Even the introduction of railway and telegraph was viewed with suspicion. तो मैं आप इनको हिंदी में समझाता हूँ एक एक करके। पहला जो है वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जब वेस्टर्न, क्योंकि जो वेस्ट वाले होते हैं, वेस्ट में जो रिच कंट्रीज़ हो गई यूरोप की, है ना, वो हम उनकी बात करें, ईस्ट में इंडिया, पुअर कंट्रीज़ जो उस टाइम पर थी उसकी बात हो रही है। तो 1850 में एक हिंदू लॉ पास हुआ था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल लगाया कि जो भी इंडियन है उसको क्रिश्चियंस में चेंज करो। तो इस रूल के इम्प्लीमेंट होने के बाद इंडियंस का जो इमोशन था वो कन्वर्ट हुआ, उनको गुस्सा आया और उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा कि हम क्यों क्रिश्चियनिटी में चेंज हो, और लोग इससे ऑफ कोर्स भड़क गए और लोगों ने फिर रिवॉल्ट कर दिया। दूसरा कारण था एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस लाइक सती एंड फीमेल इंफेंटिसाइड। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो हमेशा से अपने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हाई रहा है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अपर पोजीशन में रहा है। तो सती जैसे कि उसमें क्या होता है कि एक विधवा औरत की दोबारा शादी कराई जाए। हाँ, वैसे एक तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये शायद एक ऐसा चीज़ था जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करा और जो कि भारत के लिए अच्छा ही था, लेकिन इंडियंस जो कि अपने कल्चर से जुड़े हुए होते हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विद्रोह किया। और इंडियंस को ये भी पसंद नहीं आया कि विडो रीमैरिज को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए, बिकॉज उनको लगता था कि ऐसा करने से उनकी
जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये कैन से उनकी परंपरा है, वो भ्रष्ट होंगी। तीसरा कारण था कि इंडिया में वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन का बढ़ावा देना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, इंडिया में जो हिंदू और मुस्लिम थे उनके बीच में एक तरीके की दरार पड़ गई और आपस में वो लड़ गए। और आखिरी में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज और टेलीग्राफ, इससे इंडिया की ग्रोथ हुई। लेकिन ये सब मेजर कॉजेज़ के अंदर ही आते हैं। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था मिलिट्री कॉजेज़ को लेकर, जिसमें कि हमने देखा था कि इन 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पर जो भी इंडियन सोल्जर होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होता था, उसके लिए ये कंपलसरी रूल था कि वो चाहे कितना भी काम कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, वो सूबेदार से ऊपर की रैंक पे नहीं जा सकता था। तो कॉमन सी बात है, रिवॉल्ट होना था और वो हुआ भी। इंडियन सिपाहीज जो थे 87% से ज़्यादा ब्रिटिश ट्रूप्स के अंदर थे और ब्रिटिशर्स जो बोलते थे उन्हें सिर्फ वही करना पड़ता था, उनको खुल के बोलने की आज़ादी नहीं थी। ये भी एक मेजर रीज़न था। प्लस इंडियन सिपाही को बहुत ज़्यादा लेस पेमेंट की जाती थी यूरोपियन सिपाही के कंपैरिजन में, वो भी सेम रैंक के। कहने का मतलब है कि अगर एक ब्रिटिश में कोई सूबेदार है तो उसकी सैलरी अगर मान लो 40,000 है, तो वही इंडियन का जो सूबेदार होगा उसको उससे कम दी जाएगी। तो इसके कारण भी रिवॉल्ट हुआ। As well as we have seen, they were required to serve in areas far away from their home. In 1856, there was Lord Canning, who was the statesman and Governor General of India during the Indian Mutiny of 1857. He was also the first Viceroy of India in 1858. Lord Canning. The most important event during his rule take place, like the mutiny of 1857, which he was able to suppress successfully, passing of Indian Council Act in 1861, which introduced portfolio system in India. Lord Canning also withdrawal the doctrine of lapse, which was one of the main reasons of mutiny of 1858, introduction of Code of Criminal Procedure, enactment of Indian High Court Act, Indian Penal Code, etc. कहने का मतलब ये है कि जब लॉर्ड कैनिंग इंडिया में आया तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ और बहुत ज़्यादा ही क्रूर था। 1861 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें कि एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। लॉर्ड कैनिंग की मदद से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कि रिमूव किया गया इंडिया में, और वो एक मेजर रीज़न था 1857 के रिवॉल्ट में। जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर होता है कि जो किंग का बेटा है सिर्फ वही रूल करेगा और उसी की डिसेंडेंट फैमिली से वो माना जाएगा, किसी आउटसाइडर को वो किंग में कंसिडर करते नहीं। जैसे कि मैंने पीछे बताया था, रानी जो झांसी का जो बेटा था उसको राजगद्दी पे नहीं बैठाया गया था, जो बिकॉज क्योंकि वो इंडियन था और वो किंग की फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, इसलिए। एक और कॉज था, इमीडिएट कॉज, बट वी कैन say that the revolt of 1857 eventually broke out over the incident of greased cartridges. एक अफवाह फैली थी कि इनफील्ड राइफल में जो गन होती है वो काउस और पिग्स के बॉडी से बना होता है। आप कह सकते हो कि उनकी खाल को यूज़ करके उन्होंने ग्रीस कार्ट्रिजेस में गन्स डाली थी, और ऐसा माना भी जाता था कि उन राइफल्स को लोड करने से पहले वो उस चीज़ को अच्छे से चेक कर लेते थे, और इंडियंस जो कि इस सब चीज़ों के अगेंस्ट होते थे उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। हिंदू और मुस्लिम जो कि अपने रिलीजन को लेकर बहुत ही सेंटिमेंटल थे, उन्होंने भी इस चीज़ को मना किया बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि पिग के कार्ट्रिजेस से गन का यूज़ करा जाए। लॉर्ड कैनिंग ऑल्सो ट्राइड टू मेक अमेंड्स फॉर द एरर and offending cartridges were withdrawn, but the demand had already been done. There was unrest in several places. In March 1857, Mangal Pandey, a sepoy in Barakpur, had refused to use cartridge, attacks his senior officer. He was hanged to death on 8th April. On 9th of May, 85 soldiers and men had refused to use the new rifle and were sentenced to 10 years imprisonment. तो हुआ क्या, मार्च 1857 में मंगल पांडे जो कि एक सिपाही थे बैरकपुर में,
उन्होंने भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा और उन्होंने कहा कि नहीं, जो पिग है उसकी खाल का यूज़ नहीं करा जाएगा और किसी भी एनिमल को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करा जाएगा, तो उसको अपने इनफील्ड रैपल में लगा के यूज़ करने के लिए। तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को अटैक कर दिया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 8 अप्रैल को उनको डेथ मतलब कि मार दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। 9 मई को 85 सोल्जर्स थे जो मेरठ में, उन्होंने मना कर दिया कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और वर्क नहीं करने वाले, और वो सारी जो चीज़ें हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन कल्चर्स को हार्म कर रही थी उस सब के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। तो ये सब मेजर रीजंस थे और मेजर कारण थे। अब 1859 रिवॉल्ट के होने के बाद आखिरकार हुआ क्या? सो फर्स्ट वन इज एंड ऑफ कंपनी रूल। द रिवॉल्ट मार्क द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। India came under direct rule of the British Crown. This was announced by Lord Canning at a Darbar in Allahabad in a proclamation on November 1, 1858 in the name of Queen. There was third reason, religion tolerance. The British Crown promised religious tolerance and customs and traditions of India were given more attention. Administrative change. The Governor General office was replaced by that of Viceroy. Military reorganized. The ratio of British officers to Indian soldiers increased, but the army remained in the hands of English and the dominance of Bengal army. पहला कारण तो ये था कि रिवॉल्ट 1847 के होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हुआ, इस रिवॉल्ट से वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए। दूसरा था कि जो डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश क्राउन का, अब वो उनके अंतर्गत नहीं था और वो अब इंडियंस के अंतर्गत आ चुका था। जैसे कि हमने देखा लॉर्ड कैनिंग ने भी अनाउंस कर दिया था दरबार इलाहाबाद में दैट ऑन 1858 इन द नेम ऑफ क्वीन। ब्रिटिश क्राउन जो था उसने प्रॉमिस कर रखा था कि जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं इंडिया के उनके ऊपर फोकस करा जाएगा और वो ये प्रथा जैसे सती, एबोलिशन ऑफ सती जैसी प्रथाओं को रोका जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इंडिया में चेंज आया, जैसे कि हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफिस था वो वाइसरॉय से रिप्लेस हो गया था। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में बढ़े और जो पावर है वो इंग्लिश के पावर के अंतर्गत आई हुई ऑफ द बंगाल आर्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक देन सब्सक्राइब इट।